Hello. Just wait. I'll ping you again. So first of all, hi to everyone who is there on this webinar right now. Basically, as you know that this webinar is conducted to give you more information insight about MBBS in Bangladesh. As I have not myself been to Bangladesh, but definitely I can give you some kind of information about Bangladesh because it's something which is important and which you would like to know, and having more information about countries where the students go, Indian students go for studying MBBS is a good thing. As a consultant, as Bookma University, as the company, the value system is all about to give you the correct information about studying MBBS, and for that I have been listening to many countries, and as you know that there are so many videos in on my YouTube channel in which I have shared with you like what are the important things about any country जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग आपको दे के रखते हैं. तो आज हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात करें. बांग्लादेश इज़ अ नेबरिंग कंट्री, इंडिया से बहुत पास में है और क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी सीटों की कमी होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं आसपास या फिर कहीं दूर भी जाते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, चाइना, जॉर्जिया, बेलारूस, फिलीपींस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश being one of them. So today in this webinar, to help you out in taking a decision about which country you should go, we Bookma University always ask you to get all the information, not just take one country information. So क्या बांग्लादेश एक अच्छा कंट्री है, क्या आपको वहां जाके बेनिफिट होगा तो क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. तो जब हम अब्रॉड की बात करते हैं, अब्रॉड इज एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द कंट्री, बट डेफिनेटली आपको सर्च करना पड़ता है कि हर कंट्री के क्या क्या फैक्टर्स हैं. आपको मेरी यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस मिलती है जहाँ पे हम लोग कैडवर्स वगैरह वो सब चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे कैडवर्स मिलते हैं, कहाँ पे कैडवर्स नहीं मिलते, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं होती. तो आई जस्ट वांट यू गाइज टू have more understanding about Bangladesh also, so that you can decide कि बांग्लादेश आपको जाना चाहिए या आपको नहीं जाना चाहिए. ठीक है, just give me a moment. One second. All right, so first of all, let me just start the presentation in which I'll be sharing with you all the details about the country Bangladesh, which I told you that I will. And just a second. So here's Bangladesh. Bangladesh is called the land of rivers. बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था और पार्टीशन के टाइम पे 1947 में बांग्लादेश अलग हुआ इंडिया से
और now it's a country of its own, it's a public country and काफी जानते हैं हम इस कंट्री को बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आप इस कंट्री को नहीं जानते होंगे या आपको नॉलेज नहीं होगी, आप इट्स समथिंग व्हिच इज न्यू फॉर यू गाइस, बट there are some things, there are few things which you guys don't know and you won't get to know also sometimes because proper information हर जगह पे नहीं available होती है. With us is that we always give you the authentic information. Okay, authentic information देने के लिए दूसरी चीज जो मैंने करी है वो मैंने इनवाइट किया हुआ है जो आपकी क्वेरीज होंगी और अच्छे से आंसर करने के लिए, जो उनमें हमारे बीएमए के एक्सपर्ट्स हैं उनको. One more thing. Also, I have invited one student as well जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं. I hope that student is there, have joined. Let me just ask him. So, Rishabh, is Rishabh there? अभी ऋषभ ने शायद ज्वाइन नहीं किया होगा, तो let me check. Just give me 1 second, I'll come back. Yes, I'm back now. So yes, बांग्लादेश के बारे में शुरू करते हैं. बांग्लादेश एक कंट्री जो आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में, but there are few things which you might know, not know. So we will cover that thing. And मैंने questions बना दिए already इसके बारे में. There are 92 universities and colleges of Bangladesh which are listed by WDOMS, World Directory of Medical Schools. और इस वर्ल्ड डायरेक्टरी में जो है आप और भी जो है यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले पाएंगे. यू जस्ट हैव टू पुट search.wdoms.org, यहाँ पे आपको लगाना होता है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे. राइट, सो इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे बांग्लादेश सर्च करेंगे तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज के आ रहे हैं. इसे क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा. जिस यूनिवर्सिटी पेज में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और जो कहाँ कहाँ पे हैं उसके बारे में और डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं. Interesting is that there are 7 out of them which are listed, but हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही, यूनिवर्सिटी चिटगांव. तो इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, प्राइवेट वाली भी आती हैं, गवर्नमेंट वाली भी आती हैं. तो ये सिर्फ 7 नहीं है. अभी जो लेटेस्ट एफएमजी रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग दे आर 40 कॉलेजेस विच आर एफिलिएटेड जहां से इंडियन स्टूडेंट्स ने पास करा है. तो 40 प्लस ही होंगी यूनिवर्सिटी जो इनके अंदर आती है, इन सारी यूनिवर्सिटी के अंदर. तो उसके बारे में भी हम और डिटेल्स पे बात करेंगे. करेंसी ऑफ बांग्लादेश, करेंसी जो है बांग्लादेश की वो है टका, बांग्लादेशी टका, और जो उसकी वैल्यू है वो 1.5 है. तो ₹1.5 में जो है वहाँ का करेंसी आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट फिलीपींस के पैसों और उसके ही बराबर है, रूबल्स. वेदर इन बांग्लादेश, सारे 6 सीजन्स होते हैं यहाँ पे. समर, मॉनसून, ऑटम, लेट ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. एंड समर्स का टेम्परेचर होता है वो 30 to 40 डिग्रीज होता है, और जो विंटर्स हैं वो जैसे इंडिया में हमारे 7-8 डिग्री तक टेम्परेचर कभी भी चला जाता है, उसी टाइप का टेम्परेचर रहता है. करप्शन इंडेक्स की बात करें, ऑफ कोर्स इतना डिफरेंस नहीं है, बट हाँ इंडिया से काफी डिफरेंस है. यहाँ पे थोड़ा करप्शन कंपेरेटिवली ज्यादा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे.
मैं हमेशा इन सारे पॉइंट्स को हर कंट्री के इसमें इंक्लूड करती हूँ, चाहे वो करप्शन हो गया, चाहे सेफ्टी इंडेक्स हो गया, अगर अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दीज आर आवर पैरामीटर्स जहाँ पे हम डिस्कशंस करते हैं. Understanding, oh sorry, there's a mistake. Sorry. Understanding Bangladesh MBBS admission system. ये बांग्लादेश का मैप है, यहाँ पे बीच में आपका ये ढाका है. एंड देन दे आर अदर स्टेट्स जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, उसके लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज की फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाई. ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज जो कि काफी अच्छा माना जाता है, चिटागोंग हो गया, और आपका आई थिंक इट्स मूनी कॉलेज, इट्स गर्ल्स कॉलेज और समथिंग. तो ये कॉलेजेस, इनका आप इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा देख सकते हैं. नाउ बिकॉज विद अस इज द एक्सपर्ट, सो मैं उनको बोलूंगी कि वो ज्वाइन कर लें. One second. We have Basir with us. One second. Hmm. One second. Okay, we have some chats also. Let me just have a look. तो वो ज्वाइन करते हैं, मैं एक बार वाईफाई. और उसमें क्या नेटवर्क में भी आपको साउंड क्वालिटी में इशू आ रहा हो. I'll ask Mr. Basir to please turn on your camera and your mic.
Thank you. Okay, so thank you first of all. Welcome for this for joining us. आपका माइक अभी अनम्यूट नहीं हुआ है. हाँ, अब हेलो. ठीक. हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज. ठीक है, थैंक यू. हाँ, so basically आपसे कुछ हम क्वेरीज पूछेंगे जो स्टूडेंट्स की होती है बांग्लादेश के बारे में. Alright, and I hope आप उनके आंसर कर पाए because you have working with Bangladesh colleges more and maybe you ओके have मैम. maybe this year I was planning to go to Bangladesh myself, but because of Corona now I can't travel anywhere. Otherwise मैं शायद इस साल आ भी जाती. So okay, first let me just check some questions answers are there. One second. Now, are you able to understand? Are you able to hear everyone? I muted it, so yes, it was mute, but now I think that you are getting sound. And please question answers में या chat में अपने queries को लिख लीजिए. अगर आपकी queries को भी मैं बाद में I'll answer after this presentation. So first of all, बसीर जी पहले बताइए कि जो बांग्लादेश का वीजा होता है, the visa for Bangladesh. What is the process for that? Is it easy for Indians to get visa of Bangladesh? यस मैम, एक्चुअली वीजा जो प्रोसेस होता है मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ. Sure जी. ओके. एक्चुअली जो पहले जो एम्बेसी में फाइल सबमिट करना पड़ता है, ठीक है. जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और $70 वहाँ का डिजी हेल्थ का एक फीस होता है. ये सब कुछ करके 4 कॉपी करके उसको फॉर्म फिलअप करना होता है. ये 4 कॉपी करके फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग एम्बेसी में फाइल सबमिट करते हैं. टाइम लगता है वीजा लगने में? कितना टाइम लगता है? टाइम तो मैक्सिमम जो आपको 1 महीने तक प्रोसेस में रहता है. जैसे एम्बेसी में फाइल सबमिट हो जाएगा, तो एम्बेसी के फाइल सबमिट हो जाने के बाद वो बांग्लादेश चला जाएगा. बांग्लादेश का हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएगा. वहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू होता है. वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बाद स्टूडेंट वीसा होता है और हर स्टूडेंट का 1 साल का वीसा देता है और एज रिक्वायर्ड देता है. और 1 साल के बाद वो एक्सटेंशन कर सकता है. वो कॉलेज में ही हेल्प करेगा और वो बांग्लादेश से ही हो जाएगा. तो आप कह रहे हो 1 मंथ का प्रोसेस होता है. ठीक है. हाँ. और ऐसा होता है कुछ वीजा रिजेक्ट भी होते हैं क्या स्टूडेंट्स के? नहीं, अभी तक मैं जितना तक देखा है 6 ईयर से कोई स्टूडेंट का वीजा ये नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ. हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से बोला है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे डालिए, तो फिर जिस कॉलेज का स्टूडेंट है उस कॉलेज में मेल कर देते हैं तो बोनाफाइड आ जाता है. अच्छा, आप बताइए कि जो फीस स्ट्रक्चर है बांग्लादेश के कॉलेजेस का वो कितना से कितना रहता है? टोटल कॉस्ट जो फीस की आती है कितनी रहती है? एक्चुअली बांग्लादेश में बहुत सारे कॉलेज हैं. जो प्रॉपर ढाका में जो है, ढाका यूनिवर्सिटी का अंदर जो ढाका में है वो है 35,000 से $35,000 से स्टार्टिंग होता है. तो लास्ट ईयर से ही एक कॉलेज आया था जो कॉलेज का नाम है यूएस बांग्ला. उस टाइम $33,000 था. अभी इस साल कर दिया. $35,000. हाँ, इस साल कर दिया है 35,000. लेकिन बांग्लादेश में आउटसाइड ऑफ ढाका वो $33,000 $32,000 से भी कॉलेज है, पूरे लेकिन वो साल की आउटसाइड फीस ऑफ. है? सॉरी मैम. ये पूरे साल की फीस है, पूरे कोर्स की फीस है? हाँ, इसमें है 5 साल का ट्यूशन फीस और 5 साल का हॉस्टल फीस. ट्यूशन प्लस हॉस्टल. फूडिंग अलग है. अच्छा, फूडिंग कितना आएगा? फूडिंग ऑन एवरेज इंडियन करेंसी 4,000 to 5,000 पर मंथ. पर मंथ. ठीक है.
और हाईएस्ट कितना, मतलब 35,000 से भी महंगा भी होता है? हाँ, हाईएस्ट जो है 52,000 यूएस डॉलर का भी कॉलेज। वो कौन सा कॉलेज है? होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज है, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज है। तो इसका आप कह रहे हो 52,000 का फीस है, जो कि इंडियन रुपीज में 39 लाख है। हाँ हाँ, इसमें तो भी होली हॉस्टल फैमिली, भी है? नहीं ये हॉस्टल इंक्लूडिंग नहीं है, और हॉस्टल अलग है। ये है कॉस्टली कॉलेज है, जितने भी बांग्लादेश में है कॉस्टली कॉलेज है। तो होली होली और फैमिली और ढाका नेशनल मेडिकल सबसे ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली है। और ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में जो सिस्टम है मैम, हम्म। उसके उसके बारे में बताऊं? हाँ प्लीज। हाँ, उसका है जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हम्म। जो क्लास स्टार्ट होता है जनवरी महीने में, हम्म। उससे पहले वो 30,000 ले लेता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ और बाकी जो, एडमिशन ले लेंगे, अच्छा। हाँ, 30,000 ले लेता है। 30,000 लेने के बाद वो है हर महीना का थ्री $300 है। तो उसमें आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो $18,000 आता है। तो टोटल $48,000 जो है उसका ट्यूशन फी। ओके ओके ओके। अब और $100 और अच्छा, अब आप बताइए 100। कि नॉर्मली, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली जो फीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, वो आप कह रहे हो कि 50% यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर में ही ले लेती है? मैक्सिमम मैक्सिमम कॉलेज, वहाँ को तो कॉलेज कहा जाता है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है। हम्म। एक एक कॉलेज होता है, जैसे और भी कंट्री में यूनिवर्सिटी कहा जाता है ज्यादा, जी जी जी। लेकिन बांग्लादेश में हम लोग का इंडिया जैसे ही है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जैसे ही है, तो कॉलेज कहा जाता है। तो मैक्सिमम जो कॉलेज है 40% फर्स्ट ईयर ले लेता है। कुछ कॉलेज है 40% से भी ज्यादा ले लेता है, 50% भी ज्यादा ले लेता है। मतलब फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को 40 या 50 या उससे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एंड लेकिन कुछ बाकी का कॉलेज, हाँ, सेकंड। कुछ कॉलेज है जहाँ पे अब 30% भी है फर्स्ट ईयर। हाँ मतलब मैं आप बच्चों को थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि अ, आगे स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा रुकिए, मैं गैप वैप के बारे में सब मैं आप लोग को समझाऊंगी, जस्ट गिव अस सम टाइम या। अच्छा, जो फर्स्ट मान लीजिए $30,000 का पैकेज था, तो उसमें से मान लीजिए $15,000 बच्चे को पहली बार में देना पड़ा, ठीक है? बाकी का 15,000 कैसे पे करेंगे? वो ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज के लिए पूछ रहा है मैम? किसी का भी मतलब एग्जाम्पल दे दीजिए आप, किसी एक कॉलेज अच्छा का एग्जाम्पल दे दीजिए। अच्छा, किसी एक कॉलेज का एग्जाम देता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज है, हाँ ओके ग्रीन। ना? राइट, हाँ। हाँ, ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज में जो फीस है 42,000 यूएस डॉलर फीस है। ओके, 42,000 है, ठीक है जी। हाँ, 42,000 में वो उसका डिवाइड करूँ किस तरह 42,000 किया हाँ है? हाँ हाँ। हाँ, उसमें लिखा है फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन एंड अदर एकेडमिक फीस है $39,000। मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन फी है $1,000। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फी है $1,000। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका रजिस्ट्रेशन फीस है $1,000। टोटल है $42,000। ठीक है। ओके मैम? हाँ। अच्छा, $42,000 में वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग एडमिशन टाइम बोल रहा है $24,000। ठीक है। तो ये $24,000 एक साथ नहीं देना पड़ता है। हम्म। जब स्टूडेंट प्रोसेस करता है, एडमिशन प्रोसेस करता है, हम्म। तो एडमिशन का प्रोसेस के टाइम, जैसे मान लीजिए एलिजिबल कैंडिडेट, तो हम्म। हम लोग अप्लाई किया है, तो हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट पहले आता है ऑफर लेटर। हम्म। ऑफर लेटर में ऑफर लेटर में पूरा उसका मेंशन रहता है, उसका कॉलेज का अकाउंट डिटेल्स, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, कौन से टाइम में फीस देना है, एवरीथिंग इन डिटेल्स उसके ऑफर लेटर में रह जाता है। तो हम्म। अगर बच्चे एग्री है तो मिनिमम $5,000
अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। जैसे पहले अकाउंट पहले डलवा देंगे वीजा के लिए। हाँ, नहीं वीजा के लिए नहीं, वो सीट बुकिंग के लिए। टिकट बुकिंग के लिए, ओके ओके। हाँ, सीट बुकिंग के लिए $5,000, या कोई चाहे तो $10,000 भी दे सकता है, क्योंकि उसको फर्स्ट ईयर जाने से पहले 24,000 देना है। ओके मैम। जाने से पहले 24,000 देना होता है। हाँ, तो 24,000 से मान लीजिए कोई $5,000 US डाला है तो सीट बुकिंग हो जाएगा। तो वो है अकाउंट टू अकाउंट प्रोसेस होता है, हम लोग हेल्प करते हैं, पूरा हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट का पेरेंट्स का अकाउंट से भी जा सकता है या स्टूडेंट के अकाउंट से भी जा सकता है। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो स्टूडेंट का भी पैन कार्ड होना चाहिए, जरूरी है। वोटर कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड होगा और पासपोर्ट होगा, ये 3 है स्टूडेंट का लगेगा। और स्टूडेंट का जो पेरेंट है उसका अकाउंट के लिए जो अकाउंट से जाएगा उसका है पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा। पासपोर्ट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये आरबीआई का रूल्स है, सभी को पता है। फिर अकाउंट पे अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा तो वो हम लोग को एक टीटी मिलता है बैंक से, वो टीटी हम लोग कॉलेज को मेल कर दो। अभी तो अभी आप समय समझिए, आप जो भी ट्रांसफर होता है वो टीटी पर लगाया था, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है। अभी जो 42,000 में से 24,000 जाने से पहले देना है ना? मान लो बच्चे ने दे दिया सारा प्रोसेस करके, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है 24,000 माइनस करेंगे अगर इसमें से, तो 4 5 6 7 8 9 10 12 $18,000 रहेगा। 18,000। तो वो कैसे से पे करना है सेकंड टू फिफ्थ ईयर में? तो हाँ, नेक्स्ट ईयर में जैसे मान लीजिए अभी 2020-21 सेशन चलेगा, ठीक है ना मैम? तो 2000 हाँ, 2021 से तो स्टार्ट हो जाएगा, 2022 में उसका एक इंस्टॉलमेंट पड़ेगा $8,000, वो जनवरी महीने पर पड़ेगा, 1 साल के बाद। देन फिर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा वो भी 1 साल के बाद, जनवरी 2023 में देना होगा $6,000। ठीक है। और फाइनल जो इंस्टॉलमेंट हो फोर्थ है वो 2024 में जनवरी महीने में 31 जनवरी में देना होगा $4,000। ओके। इस तरह सभी कॉलेज का ऑफर लेटर में मेंशन हो जाता है। लास्ट ईयर में कुछ नहीं देना? हाँ, लास्ट ईयर कुछ इस कॉलेज के लिए कुछ नहीं देना है, ये है ओनली 4 इंस्टॉलमेंट दिया है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज 5 इंस्टॉलमेंट दिया। समझ गई, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है। आई होप एवरी स्टूडेंट गॉट इट, अंडरस्टूड इट। So depending on the university, there will be changes. So you guys can ask us and we'll Yes, let you know. One second. Now let's come to admission criteria. ठीक है? जैसे आप पहली बात बताइए कि is there any age restriction? 17 प्लस होना चाहिए। 17 प्लस होना चाहिए। What about higher age? हायर एज यहाँ पे तो 1 साल से ज्यादा गैप नहीं चलता है, तो आई होप 18 प्लस होगा या 19। अच्छा अच्छा, राइट राइट। आप कह रहे हैं कि सेकंड चीज आपने जैसे पहले भी हमें बताई थी कि 12th के बाद ओनली 1 ईयर गैप। ओनली 1 ईयर। तो यानी कि ऑफ कोर्स अगर बच्चे की एज 18 से ऊपर तो हो ही नहीं पाएगी। हाँ, 18-19 मैक्सिमम, कोई अगर ड्रॉप आउट किया तो। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। अच्छा, आप बताइए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन 10th एंड 12th। अच्छा, एक्चुअली बांग्लादेश में जो होता है मैम, वो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। वो ओनली परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको जीपीए देखना पड़ेगा। जीपीए स्कोर, जो मिनिमम जीपीए स्कोर लगता है 7/10। जैसे जीपीए है मिनिमम है, लेकिन कुछ कॉलेज का जीपीए स्कोर 9 रिक्वायर्ड है। 9 जैसे जीपीए। अच्छा। हाँ, जैसे बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज। तो इसमें 10th के मार्क्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? हाँ, 10 का 5 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो 5 सब्जेक्ट को हम लोग अगर किसी स्टूडेंट का
80 टू 100 के बीच मार्क होगा तो 5 पॉइंट मिलता है। इस तरह हम लोग 5 सब्जेक्ट 10 का ले सकते हैं। 10 को 5 सब्जेक्ट लेके ऐड करना पड़ता है, फिर 5 से उसको मल्टीपल करना पड़ता है, सॉरी डिवाइडेड करना पड़ता है, तो जीपीए स्कोर आ जाता है। उसको 3 प्लस होना चाहिए, जो भी है मिनिमम 3 प्लस होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हो तो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और हम आपको बता दें कि आपका जीपीए कितना निकल के आ जीपीए रहा है कितना और है। कितना हाँ, हाँ, कितना आपको रहेगा। हाँ। काफी और एक चीज मेन चीज है मैम, बायोलॉजी में मस्ट 60% रहना चाहिए। बायोलॉजी में मस्ट 60% रहना चाहिए। जीपीए 3.5 जो 60%। सो ये स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। आई होप कि बायो में कितने चाहिए, कितने क्या होना चाहिए। बाकी आपकी जीपी हम कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। आपको सिर्फ 10th एंड 12th की मार्क्स हमें शेयर करनी है, मैं सर के साथ शेयर करूँगी और वो आपको आगे बता देंगे। ठीक है, जैसे हाँ प्लीज। हाँ, एक्चुअली वही आप जो आ गया एक्सप्लेन यार क्या वही मैं बोल रहा हूँ, आप आ गया हाँ, ये एक्चुअली अभी गैप अभी ईयर जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ गैप ईयर के बारे में हम ढंग से क्यों बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग अबाउट इट कि मैम गैप ईयर का क्या है, इज देयर परफेक्ट कोचिंग, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट। माई जीपीए इज 9 बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई जीपीए। एक स्टूडेंट है वो कहने हैं माई जीपीए इज 9 बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई जीपीए, उनके जीपीए के हिसाब से क्या अच्छा है? जीपीए उसका 9 कैसा है, वो उसको हमको 5 सब्जेक्ट का मार्क लीजिए, वो कैसे जीपीए कैलकुलेशन किया है, वो जीपीए कुमार कैलकुलेशन। गोस्वामी, आपको मैं अपना नंबर अभी हम लोग मैसेज कर देंगे, आप एक बार अपनी 10th 12th की भेज दीजिए और मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं आपको नंबर देती हूँ, 1 मिनट में भी उसका जीपीए कैलकुलेशन हो जाएगा। नहीं वो अभी मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो फिर मैं आपको भेज दूंगी और आप अभी कर देना, ठीक है? ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाँ, गैप ईयर। सो मोस्टली क्या हाँ, होता है, स्टूडेंट्स 2 इयर्स के ऐसे भी हैं जो 2 साल अटेम्प्ट करते हैं नीट में, तो उनका 2 ईयर गैप हो जाता है, राइट, 12th के बाद। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स बांग्लादेश नहीं जा सकते? एक्चुअली वहाँ का गवर्नमेंट का जो रूल्स है मैम, हाँ। जैसे मान लीजिए जो हम लोग का नेक्स्ट सेशन है या कमिंग सेशन है हम्म 2021 2020 इस सेशन का नाम है, ठीक हम्म है मैम। हम्म तो उसमें आपको 2020 में 12 पास आउट करना होगा, और नहीं तो 2019 में मस्ट पास आउट करना होगा, 18 में नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब मैं समझी नहीं, दोबारा बोले। अच्छा, मान लीजिए 2021-20 का सेशन है, हम हाँ, लोग का जो कमिंग सेशन है, कमिंग तो सेशन। उस हाँ, तो एलिजिबल स्टूडेंट तब होगा जो 2020 में 12 पास किया है और 2018 में 10 पास किया है। 2000 2020 में उसका 19 में चाहिए 12, हाँ 12, 12th। हाँ, हाँ, और एक चाहिए 2019 का भी 12 होने से भी होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। 12th आप कह रहे हैं? अच्छा, जैसे 1 ईयर, ठीक है मैम। हेलो। हाँ बताइए क्या। हाँ, 12 पास आउट होना चाहिए 2020 में या 2019 में। ठीक है, 2019 या फिर 2020। ओके। ओके, और 10 पास आउट होना चाहिए, जैसे 2019 हो गया, वो है 17 में और वो है 18 में। अच्छा, ये मेंटेन होना चाहिए चीज के बीच में ज्यादा गैप, हाँ, नहीं बीच में भी गैप नहीं चाहिए, बीच में ठीक भी है। गैप नहीं चाहिए और 12th के बाद भी 1 साल की गैप से ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, और किसी स्टेट का या किसी हम लोग का इंडिया का बहुत सारे स्टेट है, किसी स्टेट का अगर मान लीजिए 2000 जैसे 2016 या 2018 में कोई पास आउट हुआ है, हम्म उसका अगर डेट सितंबर से बाद होगा तो वो एलिजिबल। सितंबर के बाद रिजल्ट उसका अगर सितंबर के बाद होगा तो मान लीजिए नेचुरली तो 2018 2016 वो नॉट एलिजिबल था, हम्म लेकिन किसी स्टूडेंट का उसी ईयर में
रिजल्ट आउट हुआ है या रिजल्ट पब्लिश हुआ है सितंबर के बाद तो एलिजिबल है। अच्छा, समझ गई मैं, समझ गई, सितंबर के बाद होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हमें अभी अभी अपना रिजल्ट दिया है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप एक बार देखिए अपना व्हाट्सएप। 10th और 12th दोनों का चाहिए ना? हाँ, दोनों दिए हैं। अच्छा, एक मिनट। तो 2017 में इन्होंने अपने 10th दिया है, 2019 में इन्होंने अपना 12th दिया हाँ, वो तो ये है, ईयर के हिसाब से एलिजिबल है, है। कोई इशू नहीं। उसका है, एक है 19 है, एक 95 है, 1990। ठीक है, उसका 10th में है, 5 GPA है, आसाम बोर्ड का है। और बायोलॉजी में 82 है, 5। केमिस्ट्री में है 75 और फिजिक्स में है 56। तो इसका हो गया 5 और 4 9 और 3.5 12.5 5 और 4 9 और 3 12 4। हाँ, इसके GPA 9 ही हो रहा है मैम। 9 हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है, उन्होंने खुद भी हाँ, कैलकुलेट ठीक किया था। तो कौन इसका कौन GPA 9। सजेस्ट करेंगे इनको? एक तो एक्चुअली बांग्लादेश में जितने भी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सभी में एलिजिबल है, डिपेंड करता है उसका बजट को। बजट कितना है? ओके, बजट बताइए कितने से आप क्या बजट है? स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूंगी, आपका बजट बता दीजिए। और एक सेकंड। अच्छा, एक और स्टूडेंट है, उनका 6.5 है 10th एंड 12th में। 6.5 6.5 सब्जेक्ट, इस तरह उसको व्हाट्सअप कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी डॉक्यूमेंट्स आते तो बजट जो भी होगा स्टूडेंट का, मैंने उससे पूछ लिया, वो अपना बजट बता दे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो बजट है, अगर देखा जाए तो 30 लाख तक तो है ही। 30 लाख में तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर ढाका में ही मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें आपका फूड वगैरह एडिशनल आएगा? नहीं, इसमें आ जाएगा, जैसे यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज है, हम्म। ठीक है, हम्म। उसका है $38,000 है। हम्म। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका फीस आएगा 17 लाख। तो 17 लाख अगर फीस आएगा। बांग्लादेश जाना चाहता है तो उसका बस ये होना चाहिए, अगर उसने नीट का अटेम्प्ट नहीं देना है, बांग्लादेश ही जाना है, तो शायद से अच्छा लग सकता है। अदरवाइज तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फीस पेमेंट सिस्टम। हाँ, फी पेमेंट सिस्टम वही है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का फीस है, मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है मैम, किसी एक कॉलेज का, जैसे तो मैंने किया था उस टाइम ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज का, तो ग्रीन लाइफ का करूँ या किसी और कॉलेज का करूँ? ढाका में कोई अच्छा है? ग्रीनलैंड ढाका में ही है? ग्रीन लाइफ ढाका में है, वो अच्छा कॉलेज है। अच्छा, ढाका में है। आपका स्टूडेंट भी, हाँ, आपका स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, पुनीत हाँ, कुमार मेरा वैस। student पढ़ रहा है ग्रीन लाइफ में, राइट। चलिए, हाँ, ग्रीन पुनीत लाइफ में कुमार वैस बताइए। पढ़ रहा है। उसका ग्रीन लाइफ में जो फीस है मैम, हाँ। जैसे उसका 42,000 US डॉलर फीस है। हम्म। 42,000 US डॉलर के बाद है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो एडमिशन टाइम होगा 24,000 US डॉलर। ठीक है। वो पूरा अकाउंट टू अकाउंट जाएगा, स्टूडेंट या पेरेंट्स के अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। ठीक है। उसका सेकेंड 1 साल के बाद होगा 8,000 US डॉलर, $8,000। ठीक है।
उसका थर्ड ईयर में जाएगा $6,000। एक मिनट, ये सब कॉलेज में सबमिट होगा ना? हाँ, सब कॉलेज का काम। और अच्छा फोर्थ मैम, ईयर में? फोर्थ ईयर में आएगा $4,000। मैम आपका एक रिजल्ट आया है, जीपीए देख लो, एक मिनट आप के लिए चेक है। कर लो, तब तक मैं इसका इंडियन रुपीज में बता रही हूँ। ठीक है। हाँ मैम, जो स्टूडेंट का आया है उसका है जीपीए 10 है। ओह 10 नाइस, में 10। उनका भी हो सकता है। और व्हाट वो अबाउट तो गैप ईयर तो नहीं है उनका? ग्रेजुएट तो शायद नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, एक बार देख लेता। 2018 में इन्होंने, हाँ सही है, 2018 में 10th किया है, 2020 में इन्होंने 12th किया है। भूमिका, हम लोग 12 कंट्रीज में एडमिशन्स करवाते हैं। आपको जो मैं नंबर दिया, मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप एक बार कॉन्टैक्ट करिए। आपकी परसेंटेज के हिसाब से, सबके हिसाब से हम लोग आपको यूनिवर्सिटी और कंट्री सजेस्ट करेंगे। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं मैंने 2015 में 10+2 किया है, मेरा एडमिशन बांग्लादेश में हो जाएगा क्या? कौन से ईयर में 12 क्या है मैम? 2015। नहीं होगा, 15 में है। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, गलत तरीके से एडमिशन करवाते हैं, राइट? यस यस। तो मैं इन सभी से स्टूडेंट से ये बोलूंगी कि आप जो है ये मत सोचिए कि भाई हम आपको मना करें, तो ऐसा नहीं कि हम नहीं करवा सकते। इट्स दैट कि जो कॉलेज का प्रोसेस होता है, बांग्लादेश का प्रोसेस होता है, एंड वी ऑलवेज फॉलो द लीगल वे। many consultants sometimes what they do on the pressure of the students, वो मार्कशीट को भी चेंजेस कर देते हैं, उसमें कुछ फोटोशॉप करके सबमिट करें डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब 6 साल बाद आप आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी जो डिग्री रिकॉग्नाइज चेक होगी कि वो असली है भी या नहीं है, तो आपको डिग्री आपकी रुक सकती है, राइट? यस यस। हाँ। अच्छा, जो बांग्लादेश का सिस्टम है वो 5+1 है, राइट? यस यस। 1 ईयर का इंटर्नशिप। हाँ, इंटेंसिव, और ये इंटेंसिव इंडिया में भी वैलिड है, इंडिया में नहीं करना पड़ेगा हाँ, फिर इंडिया में आपको। वैलिड है। और क्राइटेरिया फॉर गेटिंग फ्री सीट बाय सार्क। यस यस। इसमें क्या होता है, इंडिया के लिए 60 कोटा जो है गवर्नमेंट सीट है 25। 25 में 4 है बीडीएस, 4 है बीडीएस, और 21 है एमबीबीएस। ठीक है, तो कैसे मिलते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है इनका? इनका क्राइटेरिया होता है 10th या 12 में क्या वो किसका है, 100% देखता है। पहले 100 में जो सीरियल होता है, सब सब्जेक्ट में 100 मिला के इसको है। हम्म। 100 के बाद 100 पॉइंट, 99 पॉइंट, 98 पॉइंट, क्या चीज 100 होना 97 चाहिए पॉइंट। क्या?
परसेंटेज? जैसे हाँ परसेंटेज देखिए, मान लीजिए जो अप्लाई किया है 21 सीट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करता है, ठीक है, उसका भी काउंसलिंग होता है, हम्म। काउंसलिंग के हिसाब से उसका ये मिलता है। यहाँ का नीट का स्कोर का कोई वैल्यू नहीं, जो पार्ट ऑफ मार्क है उसी पे ही हो जाएगा, 12 के नीट क्वालिफाई मार्क्स करेगा तो पे ही करेगा। एडमिशन होते हैं। ओके। हाँ, इसमें नीट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई 400 मिलेगा या 300 मिलेगा, वो कोई बात नहीं, जो नीट क्वालिफाई है वही उसका समझा जाएगा। और वहाँ का जो वैल्यू है 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट हम्म। अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट होता है, मेरिट। अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट होता है। अच्छा, हाँ, तो समझाइए। ये मोर मतलब जो जो स्टूडेंट अगर कांटेक्ट करना चाहे, साथ का डिटेल्स लेना चाहते हैं, वो हमें एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको और डिटेल में समझा देंगे, राइट? यस अच्छा, यस अभी जो इनटेक जनवरी में होता है वो तो 2021 वाला बैच होगा। यस यस इस बैच का नाम है 2020-2021। बांग्लादेश का बैच ही कुछ ऐसा ही नाम है, जो लास्ट जो हो गया प्रीवियस बैच था 2019-2020। लेकिन मुझे मुझे एक थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, जो बच्चे ऐसे मई में नॉर्मली बच्चे अपना वो दे देते थे, अपना जो है नीट एग्जाम, तो मई के बाद उनको जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इतना वेट करना पड़ जाता है। इतना वेट करना पड़ जाता है, और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, सब स्टूडेंट रेडी होके भी सबमिट नहीं कर सकता है। वहाँ का गवर्नमेंट का नोटिस आता है, जे इतना तारीख से इतना तारीख में एम्बेसी में आपको वो फाइल सबमिट करना होगा। फिर हम्म। फाइल सबमिट करने के बाद इक्विवेलेंस आता है, इक्विवेलेंस के बाद है वीजा इशू होता है। हम्म। फिर कॉलेज एक डेट देता है, मोस्ट प्रोबेबली जो डेट होता है, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम फर्स्ट क्लास शुरू होता है फर्स्ट वीक के बाद, जनवरी फर्स्ट वीक के बाद। ओके ओके, हमारे तो पास एक डॉक्यूमेंट और आया है। तो जनवरी फर्स्ट वीक से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हाँ शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, हाँ, आई होप थोड़ा बढ़ सकता है सब कुछ प्रोसेस। क्योंकि नॉर्मली जो यूक्रेन वगैरह के कॉलेजेस हैं वो तो आपके सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसको मैं जीपीए अभी कैलकुलेशन करके बताती हूँ, हाँ, 1 बता। मिनट भी नहीं लगेगा। जी। 5 और 5 10 कंकन पूछ रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, जो एमसीआई पासिंग रेशियो ऑफ कोर्स बांग्लादेश का काफी अच्छा है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सेकंड नंबर पे बांग्लादेश ही आता है, टोटल कंट्री के एवरेज निकालें तो जो फर्स्ट नंबर पे है फिलीपींस, और फिलीपींस के बाद 50 क्या भारत है, बांग्लादेश एवरेज, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस का एवरेज है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल में, हमारे काउंसलर्स आपको अपने नंबर्स दे दें, और डिटेल में आप अगर समझना चाहें तो डेफिनेटली आप हमसे समझ सकते हैं। इन सारी कंट्रीज में हम लोग एडमिशन करवाते हैं। आपने कर दिया कैलकुलेट? कर रहा हूँ। ओके ओके। ये है बोर्ड है, हाई स्कूल का है। फिजिक्स में 66
जिन्होंने मुझे अपना 12th दिया है प्लीज अपना 10th का भी दीजिए, सिर्फ 12th के मार्क्स से नहीं होता है। एनी स्टूडेंट जो अपने जीपीए चेक करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर दीजिए। सोहेल सरकार ने कहा 10th 2016 में किया है, 12th 2019 में, तो आपका 1 साल का गैप आ गया है। फिर भी आप हमें कांटेक्ट करिए सोहेल। अक्षय प्लीज ना नंबर दीजिए हमारा, हमारे कांटेक्ट करेंगे, हम उनको और डिटेल्स में बात करेंगे। I got 70% in 12th. Okay. So I've already given my WhatsApp number. हाँ मैम, वो एलिजिबल है, उसका जीपीए है 7.46। 7.46। 7.46। अच्छा, तो कर सकते हैं, उनका हो सकता है। सो एवरीवन, आप लोगों की बजट जो है, अगर अच्छा बस ये मिनिमम कितना पैसा लगता है? 24 लाख का है, कितना है पैकेज मिनिमम? आपको 33,000 स्टार्टिंग कॉलेज है, तो मान के चलिए 22 से 23 लाख से स्टार्टिंग है, ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस मिला के। और उस कॉलेज का फर्स्ट ईयर में ज्यादा भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 8 to 10 लाख के क्या बीच वो में कॉलेज ढाका में है फर्स्ट ईयर। या जो नॉर्थ? नहीं, ढाका से दूर है, आउटसाइड ऑफ ढाका। और ऊपर ढाका में जो है सबसे कम है 35,000 US डॉलर। यूएस बांग्ला मेडिकल कॉलेज, वो लास्ट ईयर ही फॉरेन ले रहा है, ज्यादा ओल्ड नहीं है, 6-7 साल पुरानी। 35,000। अगर ढाका में किसी को जाना है तो मिनिमम आपका $35,000 आएगा, जो कि इंडियन रुपीज हाँ, में 35,000। फ्लैट 25,000 आ रहा है, प्लस इसमें फूड वगैरह हाँ, आएगा। फूड वगैरह मान के और भी 3 लाख ऐड करना होगा। 3 लाख ऐड करने पड़ेंगे। एक और रिजल्ट है, लेट्स आई होप ये रिजल्ट आप एक बार चेक और कर लें ताकि हम आगे बढ़े। उसके बाद जितने भी होंगे हम ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ओके। अभी जितने भी और स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेश के लिए, तो हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। और आपको, हाँ, जीपीए आपका बता रहे हैं, एक सेकंड नोट कीजिए। तो एक लास्ट जो प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, अगर आपको बंगाली नहीं आती है तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपको शायद हो कि बांग्ला वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। और अगर जो लोग बांग्लादेश से हैं या जो तो बांग्ला जानते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं शायद उनके लिए अभी हम बात करेंगे, उन्हें इशू आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग इशू हमें। सो ये हर कंट्री में आता है, जैसे रशिया में भी आता है और बांग्लादेश में भी है थोड़ा बहुत। लेकिन हिंदी भी, आप अगर हिंदी आते तो भी आपका चल सकता है। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि मेरा नेटवर्क का कुछ इशू आ गया। अभी कनेक्टेड है? Some issue with the network, I guess.
हेलो। हाँ बताइए। हाँ मैम, ये है 7.36। जो अभी लास्ट जो जीपीए आया है 7.36। जो इरम का भेजा है मैंने लास्ट। हाँ अभी भेजे ना, इमरान खान, इस तरह नाम। हाँ इमरान खान शायद। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका जीपीए है 7.36, एलिजिबल है। एलिजिबल है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो अपनी मार्कशीट भेज रहे हैं, हम उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे। अभी भी आपको जो नंबर हमने दिया है या जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके नंबर्स पे आप भेज दीजिए। और जो बच्चे नहीं है एलिजिबल, वो हमें दूसरी कंट्रीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक से ज्यादा गैप है या फिर आपको जो है इशू होता है। अच्छा, वुमेन मेडिकल कॉलेज कौन सा सजेस्ट करेंगे आप? मेडिकल कॉलेज बहुत सारे कॉलेज है, वो ढाका में चाह रहा है या ढाका से बाहर, उसको ढाका में पूछ बताइए। लीजिएगा। आई थिंक द गर्ल वुड लाइक टू गो टू ढाका ओनली। हाँ ढाका में है जेड एच सिकदर, और जेड ये एच सिकदर। मनुमूर्ति करके, क्या मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एम से जो है यूनिवर्सिटी ना हाँ ये? कुमुद्दीन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है, तारपरे जेड एच सिकदर वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है। आदिन। अच्छा, आपका म्यूट हो गया, म्यूट म्यूट म्यूट। हाँ बताइए। हाँ तो जो आपको पोपा ढाका में जेड एच सिकदर जो है वो है पोपा ढाका में है। हम्म और कुमुद्दीन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है टांगइल, और हम्म थोड़ा ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है, थोड़ा ढाका से दूर है। हम्म। और एक है आदिन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है, एक ऊपर ढाका में मौगजर। जो भी स्टूडेंट है, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है आप लोगों को। और आई वुड आस्क दोज हु आर ऑन द पैनलिस्ट, बीएमई रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लीज उन्हें मैसेज करके हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए ताकि वो उन्हें कॉन्टैक्ट करें। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के बारे में बताइए, क्या ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज अच्छा अच्छा है? ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज हाँ ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज ओल्ड है, और उसका है 40,000 यूएस डॉलर फीस है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंक्लूडिंग सब कुछ लेके। और ये है चिट्टागंग यूनिवर्सिटी के अंदर है, और चिट्टागंग में पड़ता है। चिटगांव यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ढाका हाँ यूनिवर्सिटी हाँ के अंदर नहीं आता है। नहीं आता। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का फीस है 40,500, और हम्म। उसका फर्स्ट ईयर पेमेंट है 17,000 यूएस डॉलर। और ये 2005 से एस्टेब्लिश्ड है, अभी 200 से प्लस ज्यादा स्टूडेंट फॉरेन का है। हम्म। So all the students and can WhatsApp us their 12th mark sheet and 10th mark sheet. हम आपको आपका जीपीए मैसेज कर देंगे वापस, और आपको सजेस्ट कर देंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू योर बजट आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश का रिजल्ट टॉप 2 में आता है जो एमसीआई पासिंग के रेशियो के हिसाब से है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं, फिलीपींस जाना चाहते हैं, या जॉर्जिया जाना चाहते हैं, किस तरह का आपका। ऐसा कोई कॉलेज है जो एक्सक्लूसिवली जीपीए 9 के लिए हो? जो स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले अपनी मार्कशीट दी थी, वो ये पूछ रहा है कि जीपीए 9 के लिए सबसे एक्सक्लूसिव कॉलेज कौन सा है? उसके लिए एक्सक्लूसिव कॉलेज है बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज। अच्छा। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज है, 9 इब्राहिम जीपीए मेडिकल होता है। कॉलेज। हाँ इब्राहिम मेडिकल कॉलेज है, और जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज है, हाँ, ये तीनों है। जहरूल इस्लाम के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा कॉलेज है वो? बहुत अच्छा कॉलेज है, पूरा इंडियन जैसे ही पैटर्न है, सब कुछ है। आपका भी स्टूडेंट है सारिक फरहान, जो हम्म। शागर नाम है, हाँ, आपको राइट याद है। राइट राइट राइट। दो हजार हाँ, हमारे स्टूडेंट्स दो हजार पढ़ते हैं ऑलरेडी बांग्लादेश में, और जो हाँ 2017 वो कर सकते हैं। 2017-18 में पढ़ रहा है। हाँ। और एक कॉलेज फीस बहुत कम है, ये थोड़ा ढाका से 120 किलोमीटर दूर है, हम्म लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है, बाजितपुर में है, किशोरगंज। हम्म। लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हॉस्पिटल, इसका क्या नाम फैकल्टी है? सब कुछ है। जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज। उसी की बात बता रहे हैं आप, जरूर की। हाँ हाँ बहुत बड़ा कैंपस है, और उसका कैंपस में सब कुछ है, उसका हॉस्टल, खाना पीना सब कुछ, बाहर नहीं है। हम्म। और हमें प्रिंसिपल साहब भी रहता है, वो शाम को भी वो देखता है सब स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। That's सब really nice. That's really nice. अच्छा, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
क्या देखिए, थर्ड नंबर पे आता है लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन का कंट्री है बांग्लादेश। स्टूडेंट का कहना है कि विल हिंदू रिलीजन स्टूडेंट्स फेस एनी डिफिकल्टीज? ओके, एक्चुअली हम लोग का पास बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट्स भी है, हम लोग शेयर कर देंगे नंबर। एक्चुअली वहाँ पे 79% मुस्लिम है, 79%, और 20-21% हिंदू भी है। ठीक है, तो अभी जो गवर्नमेंट चला रहा है शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है, या हमारा हमारा वहाँ जो एम्बेसी भी है, एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी, तो काफ़ी टेक केयर करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट के लिए कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट को ओनली मतलब है पढ़ाई में, और वो 5 साल के लिए जा रहा है। तो कोई मतलब बच्चों को दिक्कत तो कोई नहीं इशू आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई इशू नहीं। ओके ओके ओके। तो ठीक है, लैंग्वेज बैरियर का क्या रहता है वहाँ पे? क्या टीचर्स को इंग्लिश अच्छी आती है और वहाँ लोकल्स इंग्लिश में बात कर पाते हैं? एक्चुअली ये इंटरनेशनल जो सिलेबस है, मोस्ट प्रोबेबली ये तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे लोकल स्टूडेंट भी बैठता है, फॉरेनर लोकल बैठता है, तो जो इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ का लोकल स्टूडेंट के लिए कुछ कुछ टीचर थोड़ा बांग्ला यूज कर लेता है, लेकिन इंग्लिश में वो समझाता है। अच्छा 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 अच्छा। और आउटसाइड ऑफ मार्केट रेस्टोरेंट जो भी है, शॉपिंग मॉल जो भी है, वो हिंदी बहुत अच्छा चलता है, हम्म हिंदी बहुत अच्छा समझ जाता है। हम्म इंडियन जैसे नहीं बोल पाता, लेकिन बोल लेता है। हम्म। और ये बताइए कि क्या स्टूडेंट्स को मतलब कल को अगर यूएस असेंबली देना हुआ, अब्रॉड में कहीं अच्छी जगह पे पढ़ाई करनी, क्योंकि इंडिया में जो करना चाहते हैं एमसीआई उनके तो तभी ठीक है जो इंडिया में आके डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो आगे जाके कहीं और सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड में। क्या बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कि बच्चों को यूएस असेंबली की गाइडेंस दे पाए? एक्चुअली मेरा जितना नॉलेज है, ये मैं थोड़ा और भी नॉलेज लेके आपको शेयर करूंगा, लेकिन यूएस फैमिली या एमसीआई इस तरह कुछ अलग एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं होता। वहाँ पे जो पढ़ाई होता है उस पढ़ाई के हिसाब से एमसीआई का तैयारी हो जाता है। अभी लास्ट ईयर जो जून में हुआ था एफएमजी, तो हम्म उसमें जैसे ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज का 75% पासिंग रेशियो है, हम्म 75%। मोस्ट प्रोबेबली वो इंटर्नशिप कर रहा है, इंटर्नशिप करते करते भी वो क्वालिफाई हो गया। ओके 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 ओके। अच्छा ये बच्चे ने, अच्छा वो क्वेश्चन एक सेकंड रुकिए, एक क्वेश्चन और है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो है, बच्चा कौन से ईयर से क्लिनिकल्स के लिए हॉस्पिटल के लिए जाता है? वो लास्ट ईयर वाले में इंटर्नशिप में ही या उससे पहले भी जाता है? नहीं, वहाँ पे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, प्रॉप होता है, फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप और फोर्थ प्रॉप, ये मिला के 5 साल का कंप्लीट होता है। हम्म फर्स्ट प्रॉप जो होता है वो है 1.5 साल के बाद होता है फाइनल। हम्म उसके बाद है सेकंड, उसके बाद है थर्ड, उसके बाद है फोर्थ, फिर है 1.5 साल। तो फर्स्ट क्रॉप के बाद उसको क्लिनिकली थोड़ा देता है, क्लिनिकली पार्ट भी देता है, और पेशेंट को टच कर सकते हैं, पेशेंट से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हम्म। हैं। और पेशेंट फ्लो भी हाई है, क्योंकि हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री, डेंसिटी हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कंट्री वर्ल्ड का। तो जो स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं वो अपने अब ये ऐप को डाउनलोड करके फीस स्ट्रक्चर ले लें। जिन स्टूडेंट को जीपे जानना है वो हमें कांटेक्ट करें, अपनी मार्कशीट वगैरह भेजें, हम आपको तुरंत तुरंत जीपे करके भेज देंगे। एंड अगर जिनको एडमिशन, अभी एडमिशन ओपन हो गए हैं बांग्लादेश में? अभी एडमिशन ओपन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का जो लोकल स्टूडेंट का भी उसका एक मेडिकल जैसा हम लोग का नीट एग्जाम होता है, हाँ। वहाँ का भी उस तरह एग्जाम होता है लोकल स्टूडेंट के लिए। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हम्म तो नहीं हुआ, वो हो सकता है सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट से चालू हो सकता है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ एडमिशन। पर हाँ, इन्फॉर्मेशन अगर स्टूडेंट लेना चाहे तो आप एक हमें कांटेक्ट करें, हमारा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर है बुकमा यूनिवर्सिटी का। और बुकमा यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बांग्लादेश का पूरा काम देखते हैं, तो उनसे हम आपसे कनेक्ट करवा के आपका एडमिशन
जब भी शुरू होगा वहाँ का शुरू कर देंगे। दूसरी बात, जो आपके क्वेश्चंस हैं, हम लोग के पास आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपकी डिटेल्स आपको मिलेंगी अबाउट बांग्लादेश कॉलेजेस एंड ऑल। फ्री स्ट्रक्चर के लिए डाउनलोड कर लीजिए बुक माई यूनिवर्सिटी ऐप। अगर आप एलिजिबल, जो हमने बताया कि जीपीए अच्छा होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, 10-12 के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 12 के बाद 1 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं तो आप डरिए मत, परेशान मत होइए, आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं अब्रॉड की दूसरी दूसरी कंट्रीज, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना, यूक्रेन, वहाँ पे इतना वो नहीं है, तो वो बच्चे परेशान ना हो, राइट। तो ठीक है, बस ये थैंक अभी यू। एक काम, हाँ हाँ, बताइए। एक सजेस्ट कर सकते हैं, जी जी जी। एक सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को, अभी जो नीट होने वाला है 13 को, या नहीं होगा पता नहीं, अगर होगा तो उसमें ही कंसंट्रेट कीजिए। जिस बच्चे के पासपोर्ट नहीं है या पैन कार्ड नहीं है, नीट के बाद तो लोग अप्लाई करें ताकि उसका एक काम में आ जाए। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। और जितने जल्दी हो सके अपनी जहाँ जहाँ बुकिंग शुरू हो गई वहां कर लीजिए, एक बैकअप प्लान अपना तैयार रखिए, और जब बैकअप प्लान आपका तैयार होगा तो अच्छा रहेगा, आप सही टाइम पे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू बसीर जी फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपने की थैंक यू मैम। इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपसे काफी बार कोलकाता में मिल चुकी हूँ, हमारे सेमिनार्स में आप लोग आते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें। और ठीक है, एक स्टूडेंट को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, सो एक स्टूडेंट भी है जो उनके साथ हम थोड़ा बात कर लेते हैं, एंड देन वील एंड दिस वेबिनार। अच्छा, ऋषभ, ऋषभ, हाँ ऋषभ, okay. हाय मैम। हाय ऋषभ, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो आपने हमें मेरी वीडियो पे कमेंट किया था अबाउट, हाय, आपने मेरी वीडियो पे हाय कमेंट मैम। किया था अबाउट जैसे आप वहाँ पे ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप ज्वाइन कर लें। सो बताइए कैसे आपने कैसे डिसाइड किया बांग्लादेश के बारे में, कैसे सब कुछ हुआ? मैम जैसे कि सर ने बताया अभी आप वैशाली गाजियाबाद से कि हैं? या, मैं भी अपने घर पे ही हूँ ड्यू टू पैंडेमिक। जी मैं जी। वापस आ गया। फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन इसी साल हुआ था, 2019 सेशन। बताइए। सो 2018 में मैंने 12th पास किया था। देन मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया नीट के लिए। देन नीट मेरा अच्छा गया, लेकिन स्कोर मतलब अराउंड मेरे 420 थे, लेकिन मुझे कॉलेज नहीं इंडिया में मिला। आई वाज गेटिंग बीडीएस बट आई वाज नॉट गेटिंग एमबीबीएस। तो मैम फिर मैंने डिसाइड किया टू चूज बांग्लादेश, बिकॉज मेरे पहले से एक सीनियर पढ़ते हैं बांग्लादेश में। ही इज इन 5th ईयर इन ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज एंड ही सजेस्टेड मी मैम। वहाँ का स्टडी पैटर्न काफी सिमिलर है इंडिया से, एंड स्टडी पैटर्न सेम है, डिजीज पैटर्न सेम है, एंड देन फूड सेम है, क्लाइमेट सेम है, एंड टीचर्स भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, सीनियर्स फ्रेंडली हैं। देन कॉलेज का एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है वहाँ पे। एंड रिलीजियस कोई इशू हम लोग को लगता है कि इस्लाम कंट्री, एक वो इस्लामिक कंट्री है तो थोड़ा इशू होता है। हाँ, वो मेरे पेरेंट्स को भी लगा था, सब लोग डरे थे, कुछ लोगों ने मना भी किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, मेरा सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 to 4 मंथ स्टे था मेरे वहाँ पे। देन मुझे वापस आना पड़ा। बट मैम मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे कॉलेज में खुद हिंदू फेस्टिवल सरस्वती पूजा सेलिब्रेट हुआ था। यस। तो वहाँ के क्या जो तो वो है आपके प्रिंसिपल वगैरह हिंदू होंगे, ऐसा कुछ है? मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग। प्रिंसिपल तो हिंदू नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर्स, लाइक हमारी बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर मीनाती बनर्जी, इज अ बंगाली, एंड मैनी प्रोफेसर्स ट्यूटोरियल्स दे आर हिंदू। अच्छा 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 अच्छा। काफी स्टूडेंट्स वहाँ पे हिंदू हैं, और मेरे कॉलेज में तो अराउंड 200 स्टूडेंट्स के करीब इंडियंस हैं। इंडियंस है, हाँ इंडियंस। हमें एक्चुअली हिंदू से मतलब नहीं है, मोस्टली इंडियंस वाला जो फैक्टर आता है कि क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स कंट्री साथ में क्रिकेट खेलती हैं,
और कुछ थोड़ा सा रहता है, स्पोर्ट्स का राइवलरी रहता है, तो वो चीज है। अच्छा, क्लाइमेट कंडीशन आपने बताया, तो वहाँ पे लोग बांग्ला भाषा में ज्यादा बात करते हैं? बांग्ला मैम कह सकते हो आपकी बांग्ला, क्योंकि पढ़ाते तो वो इंग्लिश में ही है जनरली सब कुछ, लेकिन कुछ लोकल स्टूडेंट्स उनको समझाने के लिए वो बांग्ला यूज करते हैं। डेफिनेटली बांग्ला, जब आप मतलब इंडिया के किसी भी कॉर्नर से जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ डेज में लगेगा कि हाँ बांग्ला नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा है, बट सडनली आप मतलब आपको समझ में आने लगेगा और काफी सिमिलर है हिंदी से, और वहाँ पे सबको हिंदी आती है। जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं ये चीज देख के काफी ज्यादा शौक गया था कि यहाँ पे शौक हो गया था कि लोगों को इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है, लेकिन वहाँ पे हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सारे मीडियम्स का यूज होता है पढ़ाने आपके में, तो कॉलेज कोई की दिक्कत ऐसा नहीं है। फीस कितनी है? $40,000 है आपकी फीस? 40,500, यस मैम। $40,500। जी मैम। तो $40,500 आपके होते हैं 30,37,000। उसमें से यस मैम। फर्स्ट में आपने कितना पेमेंट किया है? मैम फर्स्ट ईयर में अभी तो फीस शेड्यूल के हिसाब से $17,000। 70,000 आपने अभी पे कर चुके हो। 12 lakhs के आसपास, 1275, 13 lakhs के आसपास पे कर दिया आपने। तो अभी आपने सिर्फ 4 months वहां पे आप रहे थे? 4 months? या मैम क्योंकि पेंडेमिक हो गया कोरोना, तो फिर हमें अपनी आप गए कंट्री गए मतलब इंडियन एम्बेसी इन्फॉर्म करने आए थे वहाँ पे हमें दैट कौन से मंथ यू में? मस्ट लीव दिस। जी मैम। कौन से मंथ में गए थे वहां पे? मैम मैं एक्चुअली जनवरी में गया था। इसी जनवरी में गए थे आप? या जनवरी 2020 में आप गए, और जी आप जैन में थे, फेब में थे, फिर मार्च में आप आ गए। मार्च कब आए आप? मैं मार्च, अराउंड 20 मार्च। तो मतलब आपको 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है अभी? 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छी मेरा। बात है। और आपका क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं क्या? या क्लासेस, एग्जाम्स, एक्चुअली मैम वहाँ बांग्लादेश का पैटर्न है कि आपको डेली, आपके डेली वाइवा एग्जाम्स होंगे, अच्छा। डेली वाइवा एग्जाम्स होंगे, देन रिटर्न एग्जाम्स होंगे। मतलब जो सिलेबस पैटर्न है वहाँ का वो सिमिलर है इंडिया से, बुक्स भी सिमिलर है, और इतना ज्यादा आपके एग्जाम्स होंगे कि आपको मतलब ग्रेजुअली आपको सब कुछ आने लगेगा। आप कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करके याद करना है या आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वो आपके इतने एग्जाम्स लेंगे कि आपको सब कुछ, आप थॉरो हो जाओगे हर चीज का। दैट्स तो गुड। ये वहाँ का बेस्ट पॉइंट है। हम्म। अभी भी मेरे एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन आपने जूम अदर के थ्रू। कंट्रीज के बारे में नहीं सोचा? यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। जैसे फिलीपींस का जो एमसीआई पासिंग है, अगर ओवरऑल देखा जाए, इट्स 50% प्लस, और यहाँ का जो है 36%। मतलब ऐसे एवरेज निकालने की बात कर रही हूँ मैं। कैसे आपको लगा कि नहीं, मुझे बांग्लादेश में जाना है? बिकॉज आपका सीनियर वहां पे थे, इस वजह से? मैम सीनियर थे, एंड देन मैंने रिसर्च भी किया था, कॉलेज की वीडियोस अवेलेबल हैं, हम्म। कॉलेज की वीडियो जो है वो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है। और उसके बाद मैम मेरी एक फ्रेंड रशिया गई है स्टडीज के लिए, सेवर्ड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ और पे बाइलिंगुअल है। तो मुझे उस चीज का भी इशू था कि रशिया में तो बाइलिंगुअल है bilingual ही है। स्टडीज, बाइलिंग या। तो और फिर मतलब लर्निंग बांग्ला इज मच इजियर देन लर्निंग रशियन और दैट लैंग्वेज, ऑफ कोर्स अगर आप फिलिपिनी। रशिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आपकी जैसे फिलीपींस है, वो पूरा इंग्लिश में अगर कोई बच्चे हैं तो डेफिनेटली। और अभी जैसे बांग्लादेश का तो इंटर्नशिप वैलिड है ही, राइट? तो और भी धीरे धीरे फिलीपींस की जी भी मैम। वैलिड होने वाली है। क्या उसके बारे में हम दोबारा से वेबिनार करने वाले हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो हमारे नेक्स्ट वेबिनार ज्वाइन करवा लीजिएगा उनसे, जो कि अलग अलग कंट्रीज के बारे में हम करते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कमेंट किया, सो आई कुड मीट विद यू। एंड फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग अब्रॉड एंड स्टडिंग अब्रॉड, आई हैव स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि आप अपना गिव अप नहीं करते हो ड्रीम। आप सोचते नहीं मुझे करना है, नहीं हो रहा है इंडिया में। देखिए, इंडिया में सीट की कमी है ही, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। लोग एक एक मार्क्स से रह जाते हैं, और फिर वो ये थोड़ा कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते। तो ये मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, इफ यू फाइंड इट वेरी लाइक कि मैम कैसे जाएं अब्रॉड, क्या है, तो हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बिकॉज अगर प्रोफेशन आपने चूज कर लिया कि डॉक्टर ही बनना है,
तो ये मत चूज करो कि इंडिया से ही करना है, कहीं से भी करो, लेकिन करो, अपना जो है मेन ड्रीम को जरूर अचीव करो। सो थैंक यू सो मच ऋषभ, एंड बी इन टच, इन केस मुझे आगे जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर कॉन्टैक्ट करूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। So for every student, just want to say that contact us for anything, like बांग्लादेश भी जा सकते हैं आप हमारे थ्रू, और अदर 12 कंट्रीज में हम लोग एडमिशन करवाते हैं। तो किसी भी कंट्री में अगर आप कहीं पे एलिजिबल हो, या फिर आपके लिए कौन सी एक्चुअली में सुटेबल यूनिवर्सिटी या कंट्री है, वो हम आपको बताने में हेल्प करेंगे। बुक माई यूनिवर्सिटी हमारी जो वेबसाइट है bookmyuniversity.com है, और हमारी ऐप के लिंक्स आपकी चैट में और चैट विंडो वगैरह में हमने लगा दिए हैं, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अभी आपको आपके फोन में ही सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है? So thank you so much for joining the webinar, and I hope you like it. If you like it, जब मैं इसे YouTube पे अपलोड करूँगी, comment section में जरूर लिखिएगा। Thank you.